Welcome students to the lecture 6 of life process. Previously we have discussed about the nutrition process in unicellular organism, that is amoeba. Now we will go for multicellular organism. So we have seen that the nutrition in animals is specially of holozoic type. What is holozoic mode of nutrition? Is a kind of heterotrophic nutrition, and it follows 5 sequential steps: ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. Then we have studied nutrition in amoeba, the process of phagocytosis, how amoeba they are obtaining their food and they are catching their prey. Now we'll start with the nutrition process in human being. So we will study the digestive system. Okay, this is a specialized system in our body which is responsible for the nutrition. So what is digestive system? Digestive system is a system of human being which is made up of alimentary canal and associated digestive glands, जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है, जिसके अंदर फूड डाइजेशन होता है. ओके, तो ये दो चीज़ से बना होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंट्री कैनल एंड एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. एलिमेंट्री कैनल क्या होता है, एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या होता है? एलिमेंट्री कैनल इज द लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब, इट्स अ पाइपलाइन, ओके, अबाउट 9 meters long that passes through the body cavity from mouth to anus. It starts to mouth or ends into anus. हम बोलते हैं इसको, जो हम लोगों का शरीर का जो सिस्टम दाएं हाथ से शुरू होता है और बाएं हाथ में जाके ख़त्म होता है. मैंने समझ रहे हो, दाएं हाथ से हम लोग खाना खाते हैं और बाएं हाथ से हम लोग धोते हैं. सो इट कंसिस्ट बक्कल कैविटी और माउथ, esophagus or food pipe, stomach, small intestine, large intestine, rectum and anus. These are the main parts of alimentary canal, which is a continuous pipe जिसके अंदर से फूड मूवमेंट करते रहता है. और एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या होता है? एलिमेंट्री कैनल के आसपास कुछ ग्लैंड जुड़े हुए रहते हैं जिन लोगों के अंदर फूड मटेरियल तो एंट्री नहीं करता है, बट दे हेल्प इन प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. व्हाट आर दोज ग्लैंड्स? 3 pairs of salivary glands situated in facial region, liver and gallbladder. Actually gallbladder is a storage of the materials produced by liver, that is bile. Okay, gallbladder के अंदर liver से secreted bile juice stored रहता है, and pancreas. Okay, now all these things they supply fluids or factors or enzymes which help in digestion of food. Now we have to look after the most important thing, the structure of our digestive system. Okay, so here we can see the structure. Start with the buccal cavity or mouth. Inside mouth we have tongue and 2 sets of teeth. Okay, in facial region we can find salivary glands. There are 3 pairs, 6 salivary glands are there. Okay, 1 pair of parotid gland which are situated below the ear, कान के नीचे रहता है parotid gland. and sublingual gland जो कि टंग जीभ के नीचे रहता है, sublingual gland. and 3rd pair is submandibular gland, that is which is situated under below the mandible or lower jaw. Okay, so these are the 3 pairs of salivary glands. Now buccal cavity ends into pharynx. The pharynx is a common pathway or common passage of digestive system and respiratory system. Okay, ये डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम का जो स्टार्टिंग जो यानी कि बक्कल कैविटी फैरिंग्स को टच करते हुए फूड कैविटी में एंट्री लेता है, फूड पाइप में एंट्री लेता है. फूड पाइप का दूसरा नाम है इसोफेगस. ओके, इसोफेगस को फूड पाइप भी कहा जा सकता है. सो फूड एंटर थ्रू बक्कल कैविटी एंड फ्रॉम बक्कल कैविटी
to pharynx and pharynx to food pipe और esophagus। अब esophagus जाके अंत होता है, एंड होता है स्टोमक में। दैट इज़ द साइट ऑफ प्रोटीन डाइजेशन। स्टोमक का मेन फंक्शन क्या है? प्रोटीन डाइजेशन करना। स्टोमक के आसपास यहाँ पे कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हम लोगों को मिलेगा, जैसे कि लिवर से जुड़े हुए रहेगा गॉल ब्लैडर, ओके। और स्टोमक के जो इस साइड में है, हम लोगों का लेफ्ट साइड में है स्टोमक का, यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा पैंक्रियास, ओके। दिस इज दिस आर द ग्लैंड्स, associated glands which is important part of our digestive system. Now stomach ends into small intestine। स्टोमक जहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ से शुरू होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके। तो स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज़ द लार्जेस्ट कॉइल पार्ट ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, ऑलमोस्ट 7 मीटर लॉन्ग पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल, द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल, इसका स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो डाइजेस्टेड सेमी डाइजेस्टेड जो फूड प्रोडक्ट स्टोमक से एंट्री लेता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन इज फर्दर मेड अप ऑफ 3 पार्ट, duodenum, jejunum and ileum. And the part which is associated with stomach, that is known as duodenum. The highly coiled, the longest portion of small intestine is known as jejunum, and the part which is associated or ends into large intestine, that is known as ileum. Now after small intestine there is a width 1.5 meter long pipe that is known as large intestine, though it is known as large but it is not the longest part of alimentary canal, okay। लार्ज इंटेस्टाइन मतलब कि स्टोमक में जो स्टोमक से फूड जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहा है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का कंप्लीट डाइजेशन हो जा रहा है, और कंप्लीटली डाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है विली, स्मॉल इंटेस्टाइन के जो इनर वॉल है उसमें। तो इस विली के थ्रू डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब हो जाता है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन पास कर देता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में री एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स होता है, यानी कि अनडाइजेस्टेड फूड में अगर शरीर को सप्लाई हो सके, शरीर के लिए बेनिफिशियल कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स या मिनरल्स या कुछ सब्सटेंस बचा है, तो उसको फिर से लार्ज इंटेस्टाइन का जो इनर वॉल है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो अनडाइजेस्टेड पोर्शन अल्टीमेटली कन्वर्ट किया जाता है स्टूल में और फीकल मेटल में, और उसको स्टोर कर दिया जाता है रेक्टम में, और रेक्टम का जो ओपनिंग है एनस के थ्रू अल्टीमेटली उसको पास आउट कर दिया जाता है बॉडी से बाहर, ओके। सो दिस इज द ब्रीफिंग ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, and remember that you have to practice the diagram of digestive system. Now we will start with buccal cavity or mouth. Buccal cavity or oral cavity or mouth, this is the first part of our digestive system or alimentary canal, okay। Inside mouth mastication takes place। मैस्टिकेशन मतलब ये जो खाना को हम लोग च्यू करते हैं, च्यू करके उसका जो एक पेस्ट बनाते हैं, दैट इज़ नोन एज मैस्टिकेशन। क्योंकि जो फूड हम लोग ले रहे हैं दैट इज़ कॉम्प्लेक्स इन नेचर, ओके। अब कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक डाउन करने का, डाइजेशन करने का जो प्रोसीड्योर है ये माउथ से स्टार्ट हो जाता है, एंड दैट प्रोसीड्योर इज नोन एज मैस्टिकेशन। बकल कैविटी क्या क्या जिससे बना होता है? लिप्स, okay, a pair of lips, upper and lower lip. There is the opening wall of the buccal cavity, okay, and also the lips detect the degree of hotness and coldness of food, कितना गर्म है कितना ठंडा है, हाँ, वो हम लोग अपना लिप्स से अंदाज़ा लगाते हैं। और सेकेंड वन टंग, दिस इज ए मस्कुलर ऑर्गन ऑफ आवर ओरल कैविटी और बकल कैविटी, एंड द टंग हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ फूड ड्यूरिंग द च्यूइंग। जब हम लोग खाना को चबाते हैं, फूड को आगे पीछे ऊपर नीचे करने में टंग हेल्प करता है। And it is also made up of 10,000 taste buds, okay, and different, here we can see the different zone of our tongue,
can detect different tastes. Like the front portion can detect sweet taste, the hind or back portion can detect the bitter taste. ओके, यानी कि जो करवा होता है, जो साइड फ्रंट लैटरल साइड में जो पोर्शन होता है टंग का, दैट कैन डिटेक्ट सॉल्टी टेस्ट. ओके, और लैटरल बैक जो साइड है, हाइंड लैटरल साइड, दैट कैन डिटेक्ट सावर टेस्ट, खट्टा. और बीच वाला जो पोर्शन है दैट कैन डिटेक्ट हॉट, यानी कि जो तीखा है वैसा टेस्ट ले सकता है. नाउ टंग इज ऑल्सो हैविंग रोल इन स्पीकिंग. अगर जिसके पास टंग नहीं होगा, यानी कि जीभ नहीं होगा, तो उससे उसका जो बोली है वो कोई लैंग्वेज बोल नहीं पाएगा. ओके, तो ये सारे हैं हम लोगों का टंग का इम्पोर्टेंस. नाउ टीथ. देयर आर 2 jaws in our facial region, a fixed upper jaw that is known as maxilla, and that is not movable or immovable, and a movable lower jaw or mandible. Okay, that we can move it. Okay, so we have in our facial region we have 2 jaws, upper jaw and lower jaw. Upper jaw is movable and lower jaw is upper jaw is immovable and lower jaw is movable. The jaw help इन मैस्टिकेशन, यानी च्यू प्रोसेस में हेल्प करता है. और ऑब्वियसली जॉ के ऊपर जो 2 सेट ऑफ टीथ रहता है, दे ऑल्सो हेल्प इन मैस्टिकेशन प्रोसेस और च्यूइंग प्रोसेस. इन एडल्ट ह्यूमन बीइंग देयर आर जनरली 32 टीथ आर प्रेजेंट. ओके, अब जनरली 32 टीथ एक्चुअली सारे एडल्ट में नहीं मिलता है, लेकिन जनरली हम लोगों में 30 से 28 टीथ देखने को ही मिलता है. 32 दांत जो है 32 दांत जो हम लोग बोलते हैं वो बहुत ही रेयर केस में देखने को मिलता है. ओके, एंड दिस 32 टीथ आर कॉल्ड परमानेंट टीथ और थेकोडोंट, जिसमें क्या रहता है 8 इंसेक्ट्स टीथ रहता है, 4 कैनाइन टीथ रहता है, 8 प्रीमोलर रहता है और 12 मोलर टीथ होता है. बट इन केस ऑफ इन्फेंट the total number of teeth is only 20, and those teeth are called temporary teeth or milk teeth. After age of 6 to 7 or 8 years, वो सारे जो दांत हैं मिल्क टीथ या टेम्पोररी टीथ है वो शेड आउट हो जाते हैं, यानी गिर जाते हैं, उसकी जगह में थेकोडोंट यानी कि परमानेंट टीथ आ जाता है. Here we can see the dental formula and arrangement of the different kind of teeth in our jaw. तो आगे वाला जो पोर्शन होता है वो वहाँ पे क्या रहता है, इंसिजर रहता है. इंसिजर के बाद क्या होता है, कैनाइन. कैनाइन के बाद प्रीमोलर और प्रीमोलर के बाद रहता है मोलर टीथ. ओके, अब जो डेंटल फार्मूला जो बनाया जाता है यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, 2 into I 2/2 C 1/1 PM 2/2 M 3/3. ये क्या होता है, I मतलब इंसिजर, C मतलब कैनाइन, PM मतलब प्रीमोलर, M मतलब मोलर. अब ये जो फार्मूला बनाया गया है, अगर हम लोग दो जॉ को ले और जॉ को बीच में से 2 हिस्से में बांट दें, यानी कि लेफ़्ट साइड और राइट साइड. ओके, तो लेफ़्ट साइड में एक जॉ में कितना टीथ कितना नंबर में है, तो अगर लेफ़्ट साइड को ले लेंगे, ओके, तो इंसिजर ऊपर में कितना है 2, अपर जॉ में 2 है और लोअर जॉ में 2 है. अगर कैनाइन को ले लेंगे तो लेफ़्ट साइड में कैनाइन, अपर जॉ में 1, लोअर जॉ में 1. इसी हिसाब से राइट साइड में भी वैसे ही होगा. तो इसीलिए एक सिर्फ लेफ्ट या राइट साइड का जो कितना दांत प्रेजेंट है, कितना टीथ प्रेजेंट है, वो काउंट करके हम लोग डेंटल फार्मूला बनाते हैं. ओके, तो इसको 2 से गुना कर दिया गया है क्योंकि हम लोग को टोटल नंबर ऑफ टीथ मिल जाएगा. Now salivary glands. These are the main glands of our facial region which take part in digestion, which initiate digestion. There are 3 pairs of salivary glands. 2 parotid gland, 2 sublingual gland जो कि हम लोगों का टंग के नीचे रहता है. पैरोटिड ग्लैंड कहाँ पे रहता है, हम लोगों का कान के नीचे, बिलो द ईयर. एंड 2 सबमैंडिबुलर ग्लैंड, यानी कि जो लोअर जॉ होता है, लोअर जॉ के नीचे रहता है सबमैंडिबुलर ग्लैंड, क्योंकि मैंडिबल के नीचे. सलाइवा का फंक्शन क्या है, सलाइवा मेक्स द फूड स्लिपरी.
यानी कि जब हम लोग चबाते हैं, चबाने के समय व्हेन वी आर च्यूइंग द फूड, द मसल ऑफ आवर फेशियल रीजन दे आर स्क्वीजिंग द सलाइवरी ग्लैंड, और सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवरी डक्ट जुड़ा हुआ है। सलाइवरी डक्ट के थ्रू सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा आके हम लोग का बकल कैविटी में भर जाता है, जो जिसको हम लोग लार बोलते हैं। तो वो क्या करते हैं, फूड को सॉफ्ट एंड स्लीपरी बना देता है ताकि उसको इनगल्प करने में सुविधा हो, उसको निगलने में सुविधा हो। एंड ऑल्सो सलाइवरी ग्लैंड्स कॉन्टेन फ्यू एंजाइम्स नेम्ड सलाइवरी एमाइलेज। तो सलाइवरी ग्लैंड में जो एंजाइम होता है जो कि डाइजेशन को इनिशिएट करता है, दैट इज सलाइवरी एमाइलेज। और सलाइवरी एमाइलेज इज ए कॉम्प्लेक्स एंजाइम, मतलब इससे एक से अधिक एंजाइम होता है। क्या क्या एंजाइम है, टायलिन एंड मॉल्टेज, ये 2 एंजाइम रहता है सलाइवरी एमाइलेज में, जो कि माउथ में डाइजेशन स्टार्ट करता है। और सलाइवा जो होता है, सलाइवा में और भी एक एंजाइम होता है जिसका नाम है लाइसोजाइम, जो कि एंटीबैक्टीरियल नेचर का होता है, जो कि हम लोग का माउथ के अंदर बैक्टीरिया फंगस को मार दे सकता है और माउथ को क्लीन रखता है। अब ये जो सलाइवरी एमाइलेज, इसका फंक्शन क्या है, कैसे फूड को ब्रेक डाउन करता है। पहले टायलिन फंक्शन करता है। टायलिन ब्रेक डाउन द स्टार्च इन माल्टोज, स्पेशली बॉइल्ड स्टार्च। तो टायलिन क्या करता है, बॉइल्ड स्टार्च यानी कि बॉइल्ड पोटैटो, बॉइल्ड राइस, इस तरह का फूड को तोड़ देता है माल्टोज में। माल्टोज क्या है, माल्टोज इज ए काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ओके, तो माल्टोज स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, उसको थोड़ा सिंपलर फॉर्म में तोड़ दिया माल्टोज में। उसके बाद माल्टेज बोल के एक एंजाइम होता है जो कि माल्टोज को तोड़ता है और माल्टोज को तोड़ के बनाता है ग्लूकोज। ओके, इसीलिए हम लोग जब आलू या मतलब चावल जब हम लोग खाते हैं, चबाते हैं, उसके बाद मुंह में थोड़ा मीठा मीठा फील होता है। So here what happens, starch is converted into maltose and maltose is converted into glucose. Now this chewed paste of food or semi digested food is called बोलास। तो माउथ में खाना को चबा देने के बाद जो पेस्ट बना उसको कहा गया बोलास। अब इसको भेजा जाएगा इसोफेगस में। Now second part is esophagus. This is a 25 सेंटीमीटर पाइप दैट कनेक्ट्स फेरिंग्स एंड स्टोमक। जो ओरल कैविटी का जो अंत होता है वहाँ पे फेरिंग्स रहता है, तो फेरिंग्स से लेके फूड को यानी कि बोलास को ये कैरी करके ले जाता है स्टोमक तक। अब दिस इसोफेगस इसोफेगस शोज अ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट दैट इज नोन एज पेरिस्टल्सिस और पेरिस्टल्टिक मूवमेंट। वो होता क्या है, यानी कि हम लोग देख रहे हैं इसोफेगस का एक पोर्शन कॉन्ट्रैक्ट होता रहता है, दूसरा पोर्शन रिलैक्स होता है, फिर उसके नीचे वाला पोर्शन कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर उसके नीचे वाला पोर्शन रिलैक्स होगा। तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन, ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन ये होते रहता है बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ इनवॉलेंट्री मसल, यानी कि जो मसल ऐसा मसल से बना होता है जो हम लोग का विल और विश से कंट्रोल नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड इनवॉलेंट्री एक्शन। तो थ्रू द इनवॉलेंट्री एक्शन नेम्ड एज पेरिस्टल्सिस और पेरिस्टल्टिक मूवमेंट, इसोफेगस पुशेस फूड डाउनवर्ड्स टू द स्टोमक। ओके, और इसोफेगस स्टोमक के पास आके इसोफेगल स्फिंक्टर एक मसल जो होता है वहाँ पे आके इसोफेगस ख़त्म हो जाता है और फूड को डिलीवरी कर देता है स्टोमक में। और इसोफेगल जो स्फिंक्टर मसल होता है ये क्या करता है, दैट इंश्योर्स दैट फूड फ्रॉम इसोफेगस टू स्टोमक does not go back to the esophagus, यानी कि वापस स्टोमक से इसोफेगस में ना चल जाए। Stomach is one of the most important part of our digestive system. Stomach is a J-shaped muscular bag placed below the diaphragm on the left side of abdominal cavity। यानी कि हम लोग का बॉडी में जो ऊपरी जो हिस्सा होता है उसमें 2 कैविटी होता है। ऊपर वाला हिस्सा को कहता है चेस्ट कैविटी, जिसमें हम लोग का लंग और हार्ट रहता है। फिर लंग के नीचे डायफ्राम बोल के एक पर्दा रहता है, उस डायफ्राम के नीचे रहता है हम लोगों का जितने जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो मेन ग्लैंड्स है वो डायफ्राम के नीचे, यानी कि हम लोग का जो पेट जो रीजन होता है दैट इज कॉल्ड एब्डोमिनल कैविटी। तो एब्डोमिनल कैविटी में थोड़ा सा लेफ्ट साइड में रहता है हम लोगों का जो स्टोमक, जो कि जे शेप्ड एक ग्लैंड होता है। स्टोमक का जो इनर वॉल होता है, स्टोमक का इनर वॉल में कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है जिसको कहता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो गैस्ट्रिक जूस बोल के एक लिक्विड सीक्रेट करता है। इसमें बहुत सारे सब्सटेंस होता है जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
हाँ, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, म्यूकस, जो कि फूड का जो प्रोटीन पोर्शन है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो इससे पहले हम लोग एक बार स्टोमक का जो स्ट्रक्चर है वो देख लेते हैं। तो स्टोमक का स्ट्रक्चर एक जे शेप स्ट्रक्चर है, देख रहे हैं इधर। ओके, स्टोमक का जो स्टार्टिंग पोर्शन है उसको कहा जाता है कार्डिया। उसके बाद स्टोमक का जो हेड पोर्शन है, ऊपर वाला जो पोर्शन, उसको कहा जाता है फंडस। अब ये जो जहाँ पे जे फॉर्म किया है, यानी कि जो लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ स्टोमक इज नोन एज बॉडी एंड द एंड पोर्शन इज नोन एज पाइलोरस। तो स्टोमक का 4 पोर्शन है, कार्डिया, 2 नंबर फंडस, 3 नंबर बॉडी और 4 नंबर पाइलोरस। ओके, तो पाइलोरस के बाद पाइलोरिक स्फिंक्टर मसल के थ्रू ये स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डियोडिनम पोर्शन है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो शुरुआती पोर्शन है, वहाँ पे आके स्टोमक खत्म हुआ है। अब हम लोग देखेंगे गैस्ट्रिक जूस का कंपोनेंट। गैस्ट्रिक जूस, अब गैस्ट्रिक ग्लैंड का अलग अलग सेल होता है, जैसे कि म्यूकोसा सेल। गैस्ट्रिक ग्लैंड का म्यूकोसा सेल से प्रोड्यूस होता है म्यूकस। म्यूकोसा सेल ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रोड्यूस म्यूकस विच प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक फ्रॉम HCl। HCl का जो कोरोसिव नेचर के हाथ से म्यूकस क्या करता है, स्टोमक को प्रोटेक्ट करता है। Parietal cells of gastric gland produce hydrochloric acid which kills bacteria as well as activate pepsin enzyme। स्टोमक का जो मेन एंजाइम होता है पेप्सिन, जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बिना पेप्सिन एंजाइम में एक्टिवेट नहीं होगा, क्योंकि पेप्सिन के एक्टिवेशन के लिए एसिडिक pH का ज़रूरत होता है। ओके, तो HCl पेप्सिन को कैसे एक्टिवेट करता है? पेप्सिन का जो इनएक्टिवेटेड फॉर्म है उसका नाम होता है पेप्सिनोजेन। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्ट ऑन पेप्सिनोजेन एंड कन्वर्ट इट इनटू पेप्सिन। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड का जो पेप्सिनोजेन जो है, यानी कि पेप्सिन का इनएक्टिवेटेड फॉर्म, वो चीप सेल से प्रोड्यूस होता है पेप्सिनोजेन, जो कि बाद में पेप्सिन में कन्वर्ट होता है। ओके, तो यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड मेनली 3 तरह का सेल से बना होता है, म्यूकोसा सेल, पैराइटल सेल और चीप सेल, और ये तीनों सेल अलग अलग प्रोडक्ट सीक्रेट करता है। और पेप्सिन छोड़ के और भी एक रेयर एंजाइम यहाँ पे मिलता है, दैट इज़ रेनिन। अब कोई साइंटिस्ट बोलता है कि रेनिन ह्यूमन बींग में प्रोड्यूस नहीं होता है। रेनिन जो कार्निवोर जो एनिमल्स जैसे डॉग, लायन, टाइगर, इन लोगों में रेनिन पाया जाता है, लेकिन कोई बोलता है कि रेनिन हम लोगों में भी प्रोड्यूस होता है। अब देखते हैं प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में कैसे होता है। नाउ दिस पेप्सिन एंजाइम ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू पेप्टोन, यानी कि प्रोटीन का एक सिंपलर फॉर्म है। प्रोटीन एक चेन होता है, प्रोटीन इज ए पॉलीमर। अब जैसे ही पेप्सिन एंजाइम आ जाता है प्रोटीन के ऊपर, ये इस चेन को तोड़ देता है छोटा छोटे टुकड़ों में, इसको कहा जाता है पेप्टोन। ओके, और ये रेनिन क्या करता है? रेनिन मिल्क प्रोटीन और केसिन को तोड़ के बना देता है पैराकेसिन। ओके, अब प्रोटीन का डाइजेशन आधा हो गया स्टमक में, तो आफ्टर द हाफ डाइजेस्टेड फूड और पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इन स्टोमक इज नोन एज काइम। नाउ इट विल बी सेंड टू स्मॉल इंटेस्टाइन। तो बोलास आया था स्टोमक में, बोलास का डाइजेशन के बाद ये बोलास कन्वर्ट हो गया किसमें? काइम में। अब काइम को अब भेजा जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। दैट वी विल स्टडी इन नेक्स्ट लेक्चर।